الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھ اللہ. انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم بھائیو دوستو بزرگو، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس جگہ پر 3 مسئلے بیان کیے. تو 3 مسئلے مختصر سے وقت میں بیان کر کے بات ختم کروں. پہلی چیز، لقد جاءکم، آیا تمہارے پاس آمد مصطفیٰ رسول من انفسکم، صورت مصطفیٰ عزیز علیہ ما سیرت مصطفیٰ. ایک ہے آقا کی ولادت، ایک ہے آقا کی صورت، ایک ہے آقا کی سیرت. ان تینوں چیزوں میں ولادت بے مثال ہے، صورت پر جمال ہے، سیرت با کمال ہے. ولادت بے مثال کا معنی یہ ہے کہ جیسی میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے ایسی کائنات میں نہ کسی کی ولادت ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، نہ آئندہ کبھی چانس ہے. ولادت بے مثال کا معنی یہ ہے جیسے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ایسے کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا. اور بے مثال چیز کہتے ہی اسے ہیں جس کی کوئی مثل نہ ہو. اور بے مثال جو چیز ہوتی ہے اس کا صرف تذکرہ ہو سکتا ہے، ذکر ہو سکتا ہے، اسے اپنایا نہیں جا سکتا. قرآن کریم بے مثال چیز ہے نا، بے مثال. اسے کوئی بنا سکتے ہیں؟ وہ کفار نے چیلنج کیا تھا، کیا پورا کر لیا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی نہیں بنا سکے. تو جو بے مثال ہوتی ہے اس کا صرف تذکرہ ہو سکتا ہے. قرآن کا تذکرہ ہو سکتا ہے، اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. جیسے میرے آقا کی میلاد ہے، آقا کی ولادت ہوئی ہے، ایسی چیز جو بھی مثال تھی وہ ہو چکی. اب اس کا تذکرہ تو ہو سکتا ہے، اسے کوئی اپنا نہیں سکتا. اپنانے کا کیا مطلب؟ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یوں کہے کہ آقا کریم 8 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو بمطابق علی اختلاف الروایات 12 ربیع الاول کو مکہ کی دھرتی پر، عرب کی سرزمین پر سوموار کے دن فجر کے وقت دنیا میں تشریف لائے. جب آئے تو ایران کا آتش کدہ بجھا، روم کی سلطنتوں میں تہلکہ مچا. یہ جتنے بھی سارے واقعات پیش آئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ اگر جو کہے کہ میرا بچہ بھی پیدا ہو تو یہ سارے کے سارے بھی عینی ہی جو حالات پیش آئے اسی طرح پیش آئیں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز بے مثال ہوتی ہے اس کا صرف تذکرہ ہو سکتا ہے، اس کو اپنایا نہیں جا سکتا. اس کا صرف ذکر کیا جا سکتا ہے، اسے اپنایا نہیں جا سکتا. ایک چیز ہو گئی. پہلی چیز کیا تھی؟ لقد جاءکم، آئے تمہارے پاس.
आमद मुस्तफ़ा। दूसरी चीज क्या है भाई? रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सूरत मुस्तफ़ा। दूसरी चीज, आका करीम आए, कुरान करीम कहता है रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ इंसानों तुम में से आए। रसूल का लफ्ज अल्लाह ने जिक्र किया है। याद रखें, उलमा बैठे हैं, मैं एक नुक्ते के तौर पर बात देना चाहता हूं। रसूल उसे कहते हैं जिसे अल्लाह अपने बरगुजीदा लोगों में से कुछ लोगों को चुनकर उन्हें किताब देता है, शरीयत देता है, उन्हें रसूल कहते हैं। रसूल जिस तरह इंसानों में आए हैं, इसी तरह रसूल फरिश्तों में भी आए हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। यहाँ जो लफ्ज़ रसूल आया है वो जिब्राईल के लिए आया है। अल्लाह ने यहाँ पर लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम में लफ्ज़ रसूल लगाकर एक शुबह का इज़ाला किया है। वो शुबह ये है कि शायद के आने वाली नस्लों में, शायद के जल्लाजीम की सरजमीन पर 1400 साल के बाद एक फितना ऐसा उभरे जो ये समझने लग जाए रसूल तो हैं, शायद जिब्राईल की तरह हो, रसूल तो हैं, शायद फरिश्तों की तरह हो, रसूल तो हैं, शायद नूरानी मखलूक हो। अल्लाह ने क्या कहा? फरमाया रसूलुम मिन अनफुसिकुम, रसूल हैं ऐ इंसानों तुम में से हैं, रसूल हैं ऐ कुरैशो तुम में से हैं, रसूल हैं ऐ हाशमियो तुम में से हैं, रसूल हैं ऐ अरबियो तुम में से हैं, रसूल हैं ऐ इंसानों तुम में से हैं। मैंने कहा रब्बा इंसानों में भेजने की वजह क्या थी? रब ने कहा इसलिए इंसानों में रसूल भेजे हैं क्योंकि वो इंसानों की हिदायत के लिए। लक़द जाअकुम रसूल, आया तुम्हारे पास एक बेहतरीन रसूल। अल्लाह ने लफ्ज रसूल लगाया, मिन अनफुसिकुम, ऐ इंसानों तुम में से आए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, चलो एक और नुक्ता ज़हन में आगे बता दूं। कुरान करीम की एक तफसीर है मालिम तंजील, उसके अंदर मुफस्सिरीन ने एक अजीब नुक्ता लिखा है। वो फरमाते एक है मिन अनफुसिकुम, फा के ऊपर पेश के साथ, इसका माना यह है कि मोहम्मद तुम में से। एक तफसीर ये है फा के जबर के साथ मिन अनफसिकुम। अनफस क्या कहते हैं? अनफस कहते हैं जो सबसे ज्यादा नफीस हो, सबसे ज्यादा पाकीज़ा हो, सबसे ज्यादा तहारत वाला हो। सही नफीस और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसे यूं कहा है, ऐ सरापे नफीस अनफसे दो जहां, सरवरे दिलबरा दिलबरे आशिका। नफासत वाला हो तो एक है मिन अनफुसिकुम, एक है मिन अनफसिकुम, माना उसका अलग है, माना इसका अलग है। मिन अनफुसिकुम, तवज्जो, मिन अनफुसिकुम मोहम्मद तुम में से हैं, मिन अनफसिकुम मोहम्मद तुम जैसे नहीं है। बचा दो यार। मिन अनफुसिकुम मोहम्मद तुम में से हैं, मिन अनफसिकुम तुम जैसे नहीं हैं। चलो मैं मिसाल से बात समझा दूं। आपकी ये टूटियों पे एक टूटी लगी है, यहां से जो निकलता है आप उसे क्या कहते हैं? पानी। आपकी नहर में जो चलता है आप उसे क्या कहते हैं? पानी। आपके दरिया सतलुज में चलता है आप उसे क्या कहते हैं? पानी। आपके नलके से निकलने वाला उसे भी आप पानी कहते हैं। नहर में बहने वाला आप उसे भी पानी कहते हैं। दरिया में बहने वाला आप उसे भी पानी कहते हैं। लेकिन मैं एक जमीन पे गया हूँ जिसे काबतुल्लाह कहते हैं, उसके साथ एक जगह है जहाँ टूटियां लगी हैं, वहां से पानी निकलता है जिसे जम कहते हैं। मैंने कहा है वो भी पानी है, ये भी पानी, कहते उसे भी पानी है, कहते इसे भी पानी है, नाम उसका भी पानी है, नाम इसका भी पानी है। लेकिन देखता ही हूँ घर में बच्चा बीमार होता है, घरे में पानी पड़ा है, माँ अपनी बेटी को कहती है बेटी पानी भर के ला, बेटी कहती है अम्मी ये पानी 10 दिन से पड़ा है, अगर मैं इसे भैया को पिलाऊंगी भैया बीमार हो जाएगा। लेकिन
में डालती है, पिलाने लगती है। मैंने कहा आपके घर में पानी पड़ा था, उसे पिलाना गवाया नहीं करती थी। ये पानी बोतल में पड़ा है, मुद्दत भी ज्यादा हो चुकी है, अरसा भी ज्यादा हो चुका है, वक्त भी ज्यादा हो चुका है, आया भी बहुत दूर से है, अब इसे पिलाना क्यों चाहती है? माँ ने बड़ा अजीब जवाब दिया, कहने लगी बेटी वो पानी है, ये ज़मज़म पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं है। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, मौलाना मोहम्मद जुबैर शाकिर, नारे तकबीर। वो पानियों में से पानी, ज़मज़म पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं है। आओ मैं तुम्हें एक और मिसाल दूं। आपकी मस्जिद में लगा एक पत्थर, इसे भी पत्थर कहते हैं। आपके रोड पे पड़ा पत्थर, उसे भी पत्थर कहते हैं। आपकी रेलवे पटड़ी पे पड़ा पत्थर, आप उसे भी पत्थर कहते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ काबतुल्लाह के साथ एक पत्थर लगा है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। मैंने एक रिवायत बड़ी अजीब पढ़ी है जिसे मौलाना अब्दुल माबूद साहब ने तारीख मक्का में नकल किया है। वो कहते हैं लहू ऐनान व लहू उज़नान व लहू निसान। ये पत्थर ऐसा है जिसकी आंखें भी हैं, ये पत्थर ऐसा है जिसकी जुबान भी है, ये पत्थर ऐसा है जिसके कान भी हैं। यह है पत्थर पर देखता है पत्थर पर सुनता है पत्थर पर बोलता है। मैंने कहा है ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर, कहते इसे भी पत्थर है, कहते उसे भी पत्थर है, नाम इसका भी पत्थर है, नाम उसका भी पत्थर है। लेकिन मुझे मक्का की तारीख पढ़ के ये बात समझ में आई है, वो पत्थर हैं, सारे के सारे पत्थर हैं जो टके शेर भी नहीं बिकते। हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। ज़मज़म पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं। हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा। कुरान करीम किताबों में से किताब है, किताबों जैसी। इसी तरह मसला समझ में आ गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसे इंसान। आखिरी बात खत्म करूं। तीसरी चीज फिर कभी हुजूर सलाम की जात को समझने के लिए दो तबकों ने गलती खाई। बगैर तनकीद के बात समझा रहा हूं, बड़ी तवज्जो के साथ बात समझना, इंशाअल्लाह बात दिल में उतर जाएगी। पहला तबका जिन्होंने अपने आप को इंसान समझा, अपनी सारी की सारियां कमजोरियां, सारी गलतियां अपने अंदर देखी कि मैं झूठ भी बोलता हूं, मैं फ्रॉड भी करता हूं, मैं धोखा भी देता हूं, मैं गलत तोलता भी हूं, मैं गलत नापता भी हूं। सारे गुनाह जो दुनिया के अंदर है वो सारे मेरे अंदर है। अब इसने अपनी जात पर हुजूर को मुंतबिक किया, कहा कि हुजूर इंसानों में से नहीं हो सकते। उसने अपने आप को जैसे समझा कि इंसान तो मेरे जैसे होते हैं। बात समझ नहीं आई भाई, तो जो आपकी हट गई। पहला तबका कौन है? जिसने अपनी सारी कमजोरियां देखी कि मैं झूठा भी हूं, फ्रॉडी भी हूं, धोखेबाज भी हूं, नाप तोल में कमी भी करता हूं। सारी चीजें अपने अंदर देखने के बाद उसने क्या कहा? उसने कहा जैसे मैं इंसान हूं, अगर ऐसे ही इंसान है तो फिर नबी इंसान नहीं। इस तबके ने भी गलती की। दूसरा तबका कौन सा था? दूसरा तबका वो था जिसने ये समझा, उसने कहा हुजूर इंसान तो हैं, लेकिन जिस तरह हमारा कबीला है हुजूर का भी कबीला है, जिस तरह हमारा खानदान है हुजूर का भी खानदान है, जिस तरह हमारे रिश्तेदार हैं हुजूर के भी रिश्तेदार हैं, जिस तरह हमारे अजीजो अकारिब हैं आका का भी अजीजो अकारिब हैं, जिस तरह हम मामलात करते हैं वो भी इसी तरह करते हैं, जिस तरह हम लेन देन करते हैं वो भी इस तरह करते हैं। अब इस तबके ने क्या किया? फरमाया इस तबके ने देखा कि जिस तरह हम हैं इस तरह अगर हुजूर हैं तो फिर हुजूर इंसान नहीं हो सकते। मैंने कहा पहले तबके ने क्या किया? अपने आप पर मुंतबिक किया, कहा इंसान हुजूर नहीं हो सकते। दूसरे ने क्या किया? सारी सिफात देखी, फरमाया इस तरह इंसान नहीं हो सकते। मैं मसला समझाना चाहता हूँ, मकाम नबुव्वत क्या है? मकाम नबुव्वत ये है कि हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसे इंसान नहीं।